Hello and welcome to eCoaching. So again in this session we will be continuing with data interpretation and we are looking at actual CAT papers. Till now we have seen 3 sets of CAT 2018 paper, and in today's session, in today's video, we will continue from there. We will see the remaining data interpretation sets of CAT 2018 paper, right? So let me take you through the sets once again. We have seen set number 1, 2 and 3 and we will be continuing with set number 4, right? The format is going to be the same. I'm going to show you the data first. I'll give you some time frame to understand what is given. What are you supposed to do in that period? Try to see what is given, try to understand what is not given, and try to formulate your approach from going from given to not given. Okay, so this is set number 4. Let's see what it holds. So here we have the data, and as you can see, you can also see the first question at the end of the set. So what I'm going to do is I'm going to give you a combined time. So you should take about 5 minutes to understand the data and to play with it. And by playing I mean understanding what is given, finding out what is not given, and formulating your approach. And for solving the first question I'm going to give you 2 minutes. So you have combined 7 minutes for understanding the data and solving the first question as well, right? The difficulty level is overall moderate. It's not easy, it's not difficult, it's moderate. So try to do it in the given time frame. Alright, so I hope by now you have tried to solve this question. I'm sure it is an easy one after understanding the data, right? Let's go to question number 2. The brand that had the highest profit in 2016 is what? So once again, try to solve it in the given time frame. Take about 2 minutes. It's easy to moderate. Try to solve it and come back to me. Alright, so I hope by now you are done with this question. Let me take you to the next question. Question 3. The brand that had the highest profit in 2017 is what? Once again, easy to moderate. 2 minutes से ज़्यादा time नहीं देना है इसको. Pause the video and try to solve it on your own. Come back to me when you have the answer. Right, so this was question 3, and coming to question 4, the complete list of brands whose profits went up in 2017 from 2016 is what? Easy to moderate, take about 2.5 minutes, try to solve it on your own and resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done and you have solved every question. It was easy to moderate, so if you have been following our sessions regularly, you must have been able to solve this question, right? Let me take you to the first question. Okay, let's together try to understand the data, what is given. There are only 4 brands of entry-level smartphones called A, B, C, D. Okay, their names are something weird, but they are all A, B, C, D, so I don't care. I'll be calling them A, B, C, D. Details of their market share, unit selling price, profitability, defined as the profit as a percentage of the revenue, for the year 2016 are given in the table below. Okay, so we've got brands and we've got their market share, unit selling price, profitability. Market share is in percentage. I hope you know what market share is. For example, let's say in a country only 100 people are purchasing smartphones. So that amount becomes the market. That the market for smartphones is 100 into whatever their price is, right? But in terms of the units, this is the market, 100 phones. Now let's say if company A sells 50 phones, so we can simply say that the market share of company A is 50%, as simple as that. So here we have market share in terms of percentages, unit selling price in terms of एक phone का price. So you can see 15,000, 20,000, 30,000, 25,000. Profitability, we got 10, 30, 40, 30. This is the profitability, right? Okay. What else do we have? Now we have, this is the data of 2016. ये data जो है वो 2016 का data है. We have got another paragraph which talks about 2017. 2017 में क्या होता है? In 2017, sales volume of entry-level smartphones grew by 40% as compared to that in 2016. So basically आपका market ही बढ़ गया. पहले अगर 100 फोन बिक रहे थे, तो अब 140 phones बिक रहे हैं. C offered a 40% discount on its unit selling price in 2017, which resulted in a 15% increase in its market share. उसका market share C का अभी 15% है, वो बढ़ के कितना हो गया है
30% हो गया। ईच ऑफ द अदर 3 ब्रांड्स लॉस्ट 5% मार्केट शेयर, इसका मतलब सबका -5 हो गया है। ये हो जाएगा प्लस, बाकी हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसमें +15, बाकी सब में -5। देखिए मार्केट शेयर का टोटल तो 100 ही होता है ना, मार्केट शेयर का टोटल 100 होता है, राइट। सो जो भी आप करोगे 100 उसका टोटल होना चाहिए, कुछ भी चेंजेस होने के बाद। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द अदर्स। ओके, नाउ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में हमें 2016 का एक पूरा डेटा चाहिए और 2017 का एक पूरा डेटा चाहिए, करेक्ट। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ कुछ हमारे पास चीजें हैं कि ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ठीक है। एवरीथिंग विल मेक सेंस अगर हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक मार्केट शेयर है, यूनिट सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब हमारे पास रेवेन्यू भी होना चाहिए। और अगर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात भी हुई है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो प्रॉफिट भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू सी कि हम इसको ऐसे कैसे फॉर्मुलेट करेंगे इसको। सो एक तो बात ये होगी कि हाँ 2016 का टेबल चाहिए और 2017 का टेबल भी चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी, ये ब्रांड हो गया, ये मार्केट शेयर MS, यूनिट सेलिंग प्राइस USP, मार्केट शेयर USP, रेवेन्यू, प्रॉफिट परसेंटेज में और अमाउंट में, प्रॉफिट अमाउंट, ठीक है। यही सेम चीज इधर भी चाहिए। तो वापस से सेम चीज 2017, मतलब लेट्स से ये एक मैं ब्रेक दे देता हूं यहां पर, सो दैट पता चल जाए कि यहां से नया टेबल शुरू हो रहा है। वापस मार्केट शेयर USP, वैसे USP इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एज वेल, बट यहां पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो बिजनेस वर्ल्ड में यूज होते हैं, जो आपको ऑब्वियसली अपने आप को फेमिलियराइज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस वर्ल्ड। रेवेन्यू, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अमाउंट, ओके। 3 ब्रांड्स हैं, तो 4 ब्रांड्स हैं। ABCD, जो डेटा दिया है वो पहले लिख लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। 40, 25, 15, 20, 40, 25, 15, 20, और ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। और क्या है? 15, 20, 30, 25, 15, 30, 20, 25, यही था। 15, 20, 30, 35, 15, 20, 30, 25, 15, 20, 30, 25, 15, 20, 30, 25, 10, 30, 40, 30, प्रॉफिटेबिलिटी 10, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20 देख लेते हैं। 10, 30, 40, 30, ओके।
नाउ सी, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि हमें डेटा सब कुछ परसेंटेज में, हमें मालूम नहीं मार्केट कितना है, तो ऑब्वियसली मार्केट को अज्यूम करना पड़ेगा, राइट? तो मार्केट को अज्यूम कर लो, एक अच्छा नंबर अज्यूम कर लो। लेट्स से अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि मार्केट 100 है और हमें मालूम है 2017 में 40% से बड़ा है, तो यहां पर 140 हो जाएगा, है ना? मार्केट 100 है, इसका मतलब ये क्या मालूम है कि ए के कितने फोन बिक रहे हैं? 40 फोन बिक रहे हैं। ये मैं समझ में आ गया, ए के कितने फोन बिक रहे हैं? 40। ये समझ में आ चुका है, ओके? तो 40, 25, 15, 20, ओके, ये इसका मार्केट शेयर है। चलो, अगर ए का 40 फोन बिक रहा है और हर एक का प्राइस 15,000 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 4, 60,000 इंटू 10, 6 lakhs। सिमिलरली 25 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 50, तो 5 lakhs। सी 15 इंटू 30,000, तो ये कितना हो जाएगा? 4,05,000, मतलब 50,000। एंड 25 इंटू 25, 20, सेम चीज, 4 लाख, सॉरी 5 lakhs। ओके, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, 10% ऑफ 6 लाख, 60,000। 30% ऑफ 5 lakhs, कितना होगा? 1.5 lakhs। 40% ऑफ 4 lakhs, 50,000। 45 का 40% कितना हो जाएगा? 9 into 18, so 1.8 lakhs, 1,80,000। 30% of 5 lakhs, that is 1.5 lakhs। ओके, ये देखिए अपना पूरा डेटा यहां पर सेट हो गया, बिकॉज हमने अज्यूम ही कर लिया कि मार्केट ही 100 है, 100 फोन्स। अब आते हैं 2017 में, हमें सिर्फ अभी तक इतना मालूम है कि पहला मार्केट 100 से 140 फोन हो गए अभी, ठीक है? बाकी क्या चेंजेस है देख लेते हैं। सेल्स बिकेम 40%, तो ये सेल्स ग्रू बाय 40%, ये कर लिया। सी ऑफर्ड 40% डिस्काउंट ऑन इट्स यूनिट सेलिंग प्राइस इन 2017। सी का प्राइस 30,000 है, उसका अगर 40% ढूंढ लो आप, 30,000 का 40% कितना होगा? 12,000। 12,000 माइनस कर दो, तो अब इसका यूनिट सेलिंग प्राइस हो गया 18,000, which resulted in a 15% increase in its market share. Each of the other 3 brands lost 5% market share. तो क्या करेंगे? C का जो मार्केट शेयर है, ये जो 40% है, ये वगैरह है, इसको आप क्या करोगे? 15% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 30% हो गया, और बाकी हर जगह -5, तो 15 का 30 कर दो यहां पर, 15 का 30 कर दिया, बाकी हर जगह -5, तो ये 40 की जगह 35%, सॉरी, ये हो जाएगा 20% और ये हो जाएगा 15%। चेक कर लो 100 टोटल होता है कि नहीं होता है? 100 टोटल है, ठीक है? ओके, अब क्या करेंगे? सबका यूनिट सेलिंग प्राइस का क्या चेंजेस है देख लो। प्रॉफिटेबिलिटी, हाउएवर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सी केम डाउन टू हाफ इट्स वैल्यू इन 2016, हाफ इट्स वैल्यू। सी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी? प्रॉफिटेबिलिटी, सी का प्रॉफिटेबिलिटी व्हाट? सी का प्रॉफिट 1,80,000 थी, अब ये कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? 90,000 हो जाएगा, 1,80,000 का हाफ। ओके, और क्या मालूम है अपने को? द यूनिट सेलिंग प्राइसेस ऑफ द अदर 3 ब्रांड्स एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूज रिमेन द सेम इन 2017 एज दे वर इन 2016। ओके, चलो, सी का प्रॉफिटेबिलिटी हाफ हुआ है, इसका मतलब परसेंटेज हाफ हुआ है, सॉरी हमने उसको वैल्यू में हाफ कर दिया, तो ये नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी हाफ करो, मतलब ये 20, 40 का हाफ, बाकी सबका यूएसपी सेम, 15,000, 20,000 और यहां पर 25,000। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम, 10 का 10, 30 का 30, 30 का 30। सिर्फ ये 40, सी का प्रॉफिटेबिलिटी इज इन परसेंटेज, हाफ हो गया है, तो 40 का 20, ठीक है? यहां पर भी मैं परसेंटेज लिख देता हूं सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। ओके,
अब हमें कैसे सोचना है कि भैया मार्केट है 140 फोन्स जिसका 35% किसके पास है, एमएस के ए के पास है 35%. व्हाट इज 35% ऑफ 140? 140 का 30% निकालो 42. 42 में और 5% 7 ऐड करो 49. तो 49 इंटू 15,000 करना है अपने को. 49 इंटू 15,000, करेक्ट. सो 15,000 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 15,000 इंटू 50 तो कितना मिलेगा आपको, 7,50,000. उसमें से एक 15,000 माइनस कर दो तो 7,35,000. जो पहले इसका 6 लाख रेवेन्यू था, अब ये 7,35,000 हो गया. ओके, 140 का 20% कितना होगा, 140 का 20% 28. 28 इंटू 20,000 तो 5,60,000. ये जो पहले 5 लाख था अब वो 5,60,000. 30% 42. 30% कितना होगा, 42 होगा. सो 42 इंटू 18,000 करना है आपको. 42 इंटू 18,000 तो 42 इंटू 20 कर लीजिए पहले. 42 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 84,000. 84 बेसिकली 42 इंटू आपको 18 करना है. सो 840 माइनस 84 है ना. कैसे करेंगे हम, आपको मैं ये देखिए, हमें क्या करना था 42 इंटू 18. तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, दो तरीके हैं, ठीक है. एक तो आप क्या करिए, 18 को इधर रखिए, इधर 40 प्लस 2 कर दीजिए. तो हमें 18 इंटू 4 आना चाहिए. व्हाट इज 18 इंटू 4, 72. तो ये 720 प्लस 18 इंटू 2 36. तो अभी समझ आ गया, ये हो जाएगा 756. दूसरा तरीका 42 इंटू 20 माइनस 2 कर दीजिए. सो 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 840 माइनस 42 84. तो पहले 40 निकाल लीजिए, 44 और निकालना है तो 756. यहां पर भी आंसर आ गया, करेक्ट. वापस चलते हैं. हाँ, 756 कि क्या है, 756 42 इंटू 18. सो ये हो जाएगा 756,000. ओके, 40,000 से 4,50,000 से सीधा 756. अब आया लास्ट वाला 15%. 140 का कितना हो जाएगा, 21. 21 इंटू 25,000. 21 इंटू 25. सो आपको 21 इंटू 25 करना है. 25 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, 500. उसमें एक और 25 ऐड कर दीजिए, 525. सो 5,25,000. अब ढूंढते हैं इनका प्रॉफिट. चलिए 10% कितना होगा इसका, 73,500. इसका 30% कितना होगा, 168,000. 1,60,000 है ना. 30% निकालना था. चलिए इसका कितना होगा, 20%. 7,500 का 20% कितना हो जाएगा, तो इसका 1% है 7,560. इसका 10% है 7,560, करेक्ट. उसका डबल कर दीजिए आप, तो 1,50,000 तो हो ही गया, प्लस उसमें 600 इंटू 2 तो वो 1,200 हो जाएगा. तो 1,50,000 या 1,75,000 इंटू 2 1,50,000 प्लस 1,200. सो 1,50,1,200 1,51,200 दैट इज द प्रॉफिट. और डी का 525,000 का 30%. तो 1,50,000 प्लस 2,500 का इंटू 3 75,000. So 1,57,500. 1,57,500. This is the profit of कंपनी D. अब ये पूरा टेबल अपना रेडी है. इसके ऊपर से अपने को सारे आंसर निकालने हैं. चलिए क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं पहले. The brand that had the highest revenue in 2016. चलो हाईएस्ट रेवेन्यू 2016 का हाईएस्ट रेवेन्यू A. तो आंसर इज A. सॉरी C को कर दिया हमने. आंसर इज A. आजरा. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने क्या किया है, ऑप्शन एबीसीडी रखे हैं. हम क्या अज्यूम करेंगे, एबीसीडी को मतलब एबीसीडी ही रखेंगे, बट उन्होंने क्या किया, जंबल कर दिया है. तो कई बार क्या होगा कि जल्दबाजी में आप गलत आंसर मार्क करके आ सकते हो. तो C आएगा इधर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2016, प्रॉफिट अमाउंट देखो 60,000, 1,50,000, 1,80,000, 1,50,000, सी, कंपनी सी 1,80,000 का प्रॉफिट है उसका, कंपनी सी, कहां है कंपनी सी, ये रही, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2017, 2017 में किसका हाईएस्ट प्रॉफिट है, देख लेते हैं। 2017 हाईएस्ट प्रॉफिट देखिए कहां पर है, 168,000, 1,68,000 इज द हाईएस्ट प्रॉफिट विच इज कंपनी बी, तो कंपनी बी आंसर आएगा इसका। कंपनी बी मतलब यहां पर एबीसीडी है, बहुत बढ़िया, कंपनी बी इज द आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स हुज प्रॉफिट वेंट अप इन 2017 फ्रॉम 2016, ऐसे कंपनी जिनका ब्रांड जिसका प्रॉफिट ऊपर गया हो। तो यहां पर देख लेते हैं कि हम ये देख लेंगे किसका प्रॉफिट ऊपर नहीं गया, ये देख लेंगे, है ना, किसका प्रॉफिट ऊपर नहीं गया ये देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट कहां पर ऊपर नहीं गया। ए का प्रॉफिट ऊपर गया है 60,000 से 73,000, बी का भी प्रॉफिट ऊपर गया है, सी का प्रॉफिट नीचे आया है, देखिए 1,80,000 से 151,000, तो यही हमारा आंसर है सी, सी का प्रॉफिट नीचे आया है। सो सी नहीं होना चाहिए अपने आंसर में, ए बी डी, ए बी डी कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, ए बी और डी, सी का प्रॉफिट नीचे गया है। सो द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स जिसके प्रॉफिट ऊपर गए हैं वो है ए बी एंड डी। नाउ ये ओवरऑल सेट वाज इजी टू मॉडरेट, जस्ट आपको एक अच्छा वैल्यू अज्यूम करना था, टेबल बनाना था, और एक टेबल बनाने से ही पूरा गेम खत्म हो जाता है ना, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट सेट देखते हैं। राइट, सो वी हैव सीन 4 सेट्स टिल नाउ, लेट्स क्विकली सी सेट नंबर 5। चलिए, डेटा इज ऑन द स्क्रीन, आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो फॉर डेटा आई एम गिविंग यू 4 minutes, and I think in those 4 minutes, because it's easy to moderate level question or mostly moderate level question, आप इसको 4 minutes डेटा को दीजिए, उसके बाद I will give you some other time for question. So take 4 minutes, understand the data, and come back to me when you understand everything. Okay, so I hope by now it's clear, आपने डेटा पढ़ लिया होगा. Let's have a look at question 1. If the number of old visitors buying platinum tickets was equal to the number of middle-aged visitors buying platinum tickets, then which among the following could be the total number of platinum tickets sold? Okay, take about 2 to 3 minutes. It's an easy to moderate level question. Come back to me when you are done. Right, so I hope you have marked your answer. Let me take you to question number 2. If the number of old visitors buying gold tickets was strictly greater than the number of young visitors buying gold tickets, then the number of middle-aged visitors buying gold tickets was what? So once again, it's easy to moderate. Take about 2.5 minutes, not more than that. Try to solve it on your own and come back to me when you have got the answer. Alright, so I hope you are done by now. Coming to question number 3. If the number of old visitors buying platinum tickets was equal to the number of middle-aged visitors buying economy tickets, then the number of old visitors buying gold tickets was what? It's a theta question. Easy to moderate. Again, take about 2.5 minutes, 3 minutes, not more than that. And come back to me when you have got the answer. Alright, so I hope by now you are done. Let's come to question number 4. Which of the following statements must be false? So you have been given a set of four statements. You are supposed to find which one is false. Right? So try to solve it under 3 to 4 minutes maximum, not more than that. And come back to me when you got the answer. Alright, so I hope by now you are done with question number 4 as well. So let me take you back to the data. Okay. Each visitor to an amusement park needs to buy a ticket. Ticket can be platinum, gold or economy. So there are 3 types of tickets. Platinum, gold, economy. Visitors are classified as old, middle-aged or young. There are 3 types of visitors. Okay. That means कहीं ना कहीं मुझे इस क्वेश्चन में टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी. So let's see here. Let's see ये टिकट में है platinum, gold और कौन सा था? Platinum, gold, economy and old, middle-aged, young. Okay. So platinum, gold, economy, old, middle-aged, young. ऐसा कुछ एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा.
लेट्स से यहां पर टोटल और यहां पर भी टोटल. ओके, कमिंग बैक टू द डेटा. 140 टिकट्स वर सोल्ड. देखिए सबसे पहले टोटल ही मिल गया अपने को, तो लिख दीजिए कि यहां पर टोटल 140 होगा. ओवरऑल टोटल 140 होगा, है ना. PGE वाला प्लस भी 140 एंड OMY वाला भी 140 होगा. ठीक है. The number of middle-aged visitors was twice the number of old visitors, while the number of young visitors was twice the number of middle-aged visitors. Okay. इसका मतलब ये हुआ, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि लेट्स से ये है यंग, ये है मिडिल ओल्ड, उधर ही कर देते हैं, कोई बात नहीं. हाँ, ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ओल्ड वाले x हैं तो मिडिल वाले कितने होंगे, डबल 2x, और यंग इसके भी डबल 4x. इसका मतलब टोटल मिला के कितनी होगी जनता, x प्लस 2x प्लस 4x मतलब 7x, और ये 7x इज इक्वल टू 140. इसका मतलब x कितना होगा 20. इसका मतलब आपको ये समझ में कि ओल्ड वाले कितने लोग होंगे 20, मिडिल वाले कितने लोग होंगे 40, यंग वाले कितने लोग होंगे 80, जिसका सम 140 हो गया. हाँ हो रहा है, तो यहां तक तो चीजें बैठ रही हैं. आगे बढ़ते हैं. Young visitors bought 38 of the 55 economy tickets that were sold. Okay, पहले इसको डाल दो. इकोनॉमी टिकट्स सोल्ड 55 थी, जिसमें से यंग लोगों ने 38 खरीदी थी. ऐसे आपको इस टेबल को समझना है. ओके, एंड दे बॉट half the total number of platinum tickets that were sold. किसकी बात चल रही है, यंग लोगों ने प्लैटिनम की हाफ खरीदी हुई है. सो प्लैटिनम में मान लीजिए प्लैटिनम का टोटल 2y है, तो यंग लोगों ने y खरीदी होंगी. ओके, अगर प्लैटिनम का टोटल 2y है, क्योंकि मैंने अगर x यूज कर लिया तो मैं y यूज करूंगा, यंग लोगों ने y खरीदी होगी. और ओल्ड प्लस मिडिल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, y होना चाहिए. आपको समझ में आना चाहिए, इन दोनों का सम y होना चाहिए. ओके, ठीक है. व्हाट एल्स, the number of gold tickets bought by old visitors was equal to the number of economy tickets bought by old visitors. अच्छा, old gold and old economy same था. ओके, old gold let's say ये z, और old economy ये भी z. ये नंबर कैसा था, सेम था. अब यहां से हमें कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है, जैसे कि ये हो जाएगा z प्लस z 2z, तो इसको मैं लिख सकता हूं 20 माइनस 2z. 20 माइनस 2z, याद रखना ये z है, ठीक है. इसको आप किसी और चीज से मिस्टेक मत कीजिए. दिस इज 20 माइनस 2z. ओके, ये 38 है, ये z है, तो ये 55 टोटल है, तो ये मिल जाएगा. कैसे मिलेगा, 38 माइनस कर दीजिए 55 में से, तो 55 में से अगर 30 गया तो 25, 25 में से 8 गया तो 17, उसमें भी z भी चला गया, तो ये हो जाएगा 17 माइनस z. इनका सम 55 होना चाहिए. ठीक है, इन दोनों का सम y होना चाहिए, इन दोनों का सम y होना चाहिए, राइट. सो ये क्या होगा, y माइनस दिस, y माइनस 20 माइनस 2z, है ना, y माइनस 20 माइनस 2z. और अगर मुझे ये ढूंढना है तो ये कितना होगा, पहले ये मिल जाएगा 55 में से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 140 में से 50 गया तो 90, 90 में से 5 गया तो 85. सो ये हो जाएगा 85 माइनस 2y. आपने बेसिकली 140 में से ये दोनों माइनस कर दिए, तो ये बन जाएगा 85 माइनस 2y. ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको. ये कितना है, 80 में से 38 निकालिए, कितना बचेगा 42. 42 में से y निकाल दीजिए, कितना बचेगा 42 माइनस y. 42 माइनस y, राइट. और ये भी आपको मिल जाएगा. ये कैसे मिल जाएगा आपको, या तो आप 85 माइनस 2 में से ये सब कुछ माइनस कर दीजिए, करेक्ट. तो ये कितना होगा, चलो इसको ढूंढ लेते हैं. 85 माइनस 2y माइनस z माइनस 42 माइनस y. सो ऑब्वियसली साइन चेंज करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा. सो लेट मी डू दैट. ये कितना था 2y, सॉरी, और ये कितना था 85 माइनस 2y. यस, सो 85 माइनस 2y माइनस z
माइनस 42 प्लस y। चलो पहले तो 85 में से 42 गया तो 43 और माइनस 2y प्लस y तो माइनस y माइनस z। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट 43 माइनस y प्लस z, ऐसा लिख सकते हैं फिलहाल। तो ये टेबल अपना बन चुका है। कमिंग टू क्वेश्चंस नाउ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ ओल्ड विजिटर्स बाइंग प्लैटिनम टिकट्स, ओल्ड प्लैटिनम was equal to the number of, so old platinum is equal to number of middle-aged visitors buying platinum tickets, middle-aged platinum, then which among the following could be the total number of platinum tickets sold? total platinum पूछा है। old platinum middle platinum same है ऐसा बोला है उन लोगों ने, old platinum middle platinum same है। so let's go to the data। चलिए ओल्ड प्लैटिनम मतलब 20 माइनस 2z, ये मिडिल प्लैटिनम मतलब y माइनस 20 माइनस 2z, ये दोनों इक्वल है ऐसा उन लोगों ने बोला है। तो 20 माइनस 2z y माइनस 20 माइनस 2z, राइट, ये दोनों इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली हम जानते थे कि इन दोनों का सम y था, ये y था, ये और इन दोनों का सम y था, और अगर ये इक्वल है तो मैं इनको लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू y बाय 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू y बाय 2, मतलब ये इक्वेशन में मिल सकता है कि 20 माइनस 2z इज इक्वल टू y बाय 2, 20 माइनस 2z इज इक्वल टू y बाय 2, है ना। 20 माइनस 2z इज इक्वल टू y बाय 2। तो चलिए कहीं पे कुछ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यस, सो वी कैन से दैट y बाय 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2z। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 20 माइनस 2z, 2 कॉमन निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा 4 ब्रैकेट में 10 माइनस z, तो y इतना बन गया। प्लैटिनम का टोटल कितना था आप देखिए, प्लैटिनम का टोटल 2y है, 2 इंटू y। वापिस आते हैं, इसको मतलब इसको इंटू 2 करना है। सो इफ 4 इंटू 10 माइनस जेड को इंटू 2 कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10 माइनस जेड। यहां से बस अपन को इतना दिमाग लगाना है कि जो 2y है, 2y वो है 8 इंटू 10 माइनस जेड। 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा नंबर 8 का मल्टीपल है। ऑप्शन में 38 नहीं है, 34 नहीं है, 36 नहीं है, 8 का मल्टीपल सिर्फ 32 है। सो ए इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने मल्टीपल है कि नहीं है उसके बेसिस पे मिला है, टेबल भरने के बाद भी, राइट। सो दिस वाज अ लिटिल स्मार्ट वर्क, करेक्ट। अगर आपको ऐसा नहीं करा तो आप ये इसका आंसर कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट विच इज नॉट एडवाइजेबल। आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ ओल्ड विजिटर्स बाइंग गोल्ड टिकट्स वाज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, सो ओल्ड gold is greater than number of young visitors buying gold tickets, young gold, then number of middle aged visitors buying gold ticket was what, ये पूछा है। ओल्ड वाला अगर यंग वाले से ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली बोला है, स्ट्रिक्टली। ओके, तो चलिए देखते हैं ओल्ड गोल्ड क्या है। ओल्ड गोल्ड इज z, यंग गोल्ड इज 42 माइनस y। सो मैं ये बोल सकता हूं कि ओल्ड गोल्ड जो है, ओल्ड गोल्ड z इज ग्रेटर देन 42 माइनस y, मतलब y प्लस z, ये y इधर ले आओ, ग्रेटर देन 42 है, ये पता चल गया। प्लीज रिमेंबर ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 2 का डेटा है, बाकी क्वेश्चन का डेटा नहीं है। y प्लस z इज ग्रेटर देन 42। अच्छा ठीक है, ओके। मिडल वाला क्या है, देखो मिडल वाला क्या है 43 माइनस y प्लस z। देखिए y प्लस z बोल रहे हैं कि 42 से ज्यादा है। 42 से ज्यादा का क्या मतलब है, 43, 44, 45, 46, 47 ऐसा करके। मिडल वाले हैं 43 माइनस y प्लस z, मतलब ऑब्वियसली इंसान कभी नेगेटिव नंबर में नहीं आ सकते कि भी कल मैंने -5 लोगों को देखा, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। वो मिनिमम 0 होंगे, 0।
इसका मतलब है कि ये y प्लस जेड जो है ना, उसको अगर मैंने बड़ा ले लिया 43 से थोड़ा बड़ा 44 ले लिया तो भी ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे उसको 43 ही लेना पड़ेगा और नंबर क्या आएगा 0। दैट मीन्स मिडिल एज के गोल्ड वाले कितने होंगे 0 होंगे, वो अपना आंसर 0 है। सो दिस इज द क्वेश्चन। आंसर बॉक्स में हम अच्छे से अपना आंसर डाल देते हैं 0। लो ऑब्वियसली आपको 0 पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। दिस वाज क्वेश्चन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। इफ द नंबर ऑफ ओल्ड विजिटर्स बाइंग platinum tickets, old platinum, was equal to the number of middle-aged visitors buying economy tickets, middle-aged eco, then the number of old visitors buying gold ticket was what? ढूंढना है ये old gold। चलो old platinum, middle eco, पहले टेबल पे आ जाते हैं। old platinum मतलब क्या? 20 - 2z, ठीक है। और मिडिल एज इको मतलब क्या? 17 - z। ये कैसे हैं? इक्वल है। सो मैं फिर से उसी पेज पे करते, कोई बात नहीं। 20 - 2z इज इक्वल टू 17 - z। सो ऑब्वियसली बात है कि आप 2z को उस तरफ ले जाएंगे, 17 को इस तरफ लाएंगे। 2z को इस तरफ लेकर तो क्या हो जाएगा? 2z प्लस माइनस z, तो z इज इक्वल टू 20 - 7 3। z मिल गया 3 इस क्वेश्चन के लिए। पूछा क्या है? ओल्ड बाइंग गोल्ड। चलो ओल्ड बाइंग गोल्ड कितना है? ओल्ड गोल्ड z, इसका मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ओल्ड बाइंग गोल्ड इज नथिंग बट z ओनली, z का आया था वैल्यू 3, सो हमारा आंसर आ जाएगा 3। करेक्ट? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, अगर इफ आई एम गोइंग टू फास्ट जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन अ लिटिल बिट। अगर आपने एक आध क्लू मिस कर दिया, एक अगर कैलकुलेशन यहां से वहां तक मिस कर दी तो आप चूक जाएंगे, अदरवाइज यू विल बी ऑन ट्रैक विथ मी। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स? ओके, मस्ट बी फॉल्स मतलब गलत ही होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो लोग। मस्ट बी फॉल्स, किसी भी केस में सही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? हम हर एक स्टेटमेंट को एक के बाद एक पकड़ते हैं और देखते हैं कि यार चलो क्या हम इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। पहला स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम टिकट्स बॉट बाय यंग विजिटर्स वर इक्वल। सो इसको चेक करते हैं। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम फॉल्स होना चाहिए, हम उसको पहले ट्रू करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ट्रू हो गया तो वो हमारा आंसर नहीं है, अगर जिसको ट्रू नहीं कर पाए वो हमारा आंसर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यंग लोगों ने गोल्ड प्लैटिनम जो खरीदा है वो इक्वल है। तो हम देखें क्या वो इक्वल हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, यंग लोगों के गोल्ड प्लैटिनम इक्वल है। यंग लोगों का गोल्ड प्लैटिनम y एंड 42 - y, क्या ये इक्वल हो सकता है? अगर मैं y को 21 ले लूं तो ये भी 21, ये भी 21, क्या प्रॉब्लम है? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आप y को 21 ले लेते हो, इफ यू टेक y as 21, इफ y is 21 तो ये केस ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट मस्ट वाला तो नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 पढ़िए, मतलब स्टेटमेंट बी, द नंबर ऑफ मिडिल एज एंड यंग विजिटर्स बाइंग गोल्ड वर इक्वल। मिडिल एज यंग गोल्ड इक्वल है। ओके, मिडिल एज एंड यंग का गोल्ड इक्वल है, ऐसा वो बता रहे हैं। मिडिल एज एंड यंग का गोल्ड 42 - y and 43 - y plus z. So 43 - y और 42 - y, y कैंसल। इसका मतलब ये है कि 43 - 42 इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव वैल्यू आया z इक्वल टू 1, कहीं पे z इक्वल टू 1 होने से नेगेटिव वैल्यू नहीं आ पा रहा है। सो अगेन, अगर सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सारे वैल्यू इंटीजर है तो भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। z इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी भी ट्रू हो सकता है ना। स्टेटमेंट बी भी ट्रू हो सकता है। स्टेटमेंट सी क्या आता है?
See, the number of old and middle age visitors buying economy were equal. Old, middle, economy. Okay. Old, middle, economy equal करना है. Okay, let me remove this. Old, middle, economy. Z and 17 minus Z. So Z is Z. 17 minus Z is equal to Z. That means 17 is equal to 2Z. Z will be 8.5. Not possible. Because हमने number of people को Z assume करा हुआ है. Obviously number of people 8.5 नहीं हो सकते, है ना? That means ये कभी possible नहीं है. This must be false. इंसान कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते. स्टेटमेंट सी इज द आंसर और उसको हम मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे. राइट? बिकॉज नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. करेक्ट? सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट.